Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two super interesting topics. So, first article will be seeing chimpanzees who surprised scientists by showing humor-like rational thinking. And then, in the second article, we have a good news. Champion shuttler Lakshya Sen, who has bounced back after a tough phase to win the Australian Open title. Okay, so let's get started. Now, students, for the first article, let's start by traveling back to 1960. So, there was a researcher named Jane Goodall. Now, few months back, I think we have covered news podcast on Jane Goodall, right? So, she recently died and she worked in the field of animals, स्पेशली फॉर चिंपैंजीज, है ना? तो उन्होंने चिंपैंजीज के लिए बहुत काम किया है, राइट? सो जेन गुडॉल quietly observes group of scientists, and this is the year 1960. So suddenly she sees something unbelievable. What she saw that time, that a chimpanzee picks up a twig and modifies it, then it inserts it into a termite mound and pulls it out covered in insects. So chimp then eats the termites like they are French fries. Now, why was this shocking? Reason being because, reason being is that scientists believe that only humans use tools. Now, Goodall's discovery erased that data. So, her work raised a new question. If chimpanzees can use tools like us, what else are they capable of? Do they think like us? Do they reason like us? And now, many decades later, dear students, scientists have found something surprising. They have found another surprising answer. तो एक टीम गई थी फ्रॉम नेदरलैंड्स, युगांडा, यूके, यूएस, एंड दे परफॉर्म्ड न्यू दे परफॉर्म न्यू स्टडी. तो उनके जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, वो पावरफुल थे. उन्होंने सिंपल से सवालों का उन्होंने जवाब ढूंढना चाहा. डू चिंपैंजीज रिवाइज देयर बिलीव्स व्हेन दे आर फेस्ड विद न्यू इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक ह्यूमंस डू? In other words, when chimpanzees gets mixed signals, when clues contradict each other, when new evidence appears, do they think logically? Do they update their decisions? So let's find out. अब साइंटिस्ट ने कुछ यूज किया. इट्स कॉल्ड बेजियन बिलीफ, बेजियन मॉडल. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसका सिंपल अगर समझेंगे, सिंपल तरीके से अगर हम समझेंगे, तो इमेजिन करो, यू थिंक योर कीज आर इन योर बैग, यू चेक, दे आर्ट देयर. So you update your belief and think, maybe I left them on the table. So you used Bayesian thinking, updating beliefs with new evidence. So the question was, do chimpanzees do the same? क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? तो इसीलिए इस सिलसिले में कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए, 5 एक्सपेरिमेंट्स. ओके, यहाँ पे 5 टेस्ट लिखे ना, 5 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए. फर्स्ट टेस्ट वाज स्ट्रॉन्ग क्लू वर्सेस वीक क्लू. So chimps saw or heard clues about where food was hidden. Strong clue क्या हो गया? Seeing food dropped into a container. Weak clue क्या हो गया? Hearing food rattle inside. So sometimes strong came first, sometimes it came second. So result is that chimps trusted this stronger clue even if it appeared later. तो इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि आप कई बार क्या करते हो, वीक र्यूमर को इग्नोर कर देते हो ना, जब आपके पास कोई क्लियर एविडेंस आ जाता है. तो वैसे ही चिम्प्स भी करते हैं. जब उन्हें खाने के बारे में पता चलता है, स्ट्रॉ किसी खाना कहाँ छुपा है उसके बारे में अगर उनको स्ट्रॉन्गर क्लू मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो अपना बिलीफ है उसको इवेल्युएट करते हैं. ओके. अब कई बार क्या होता है कि वो क्लूज को स्वैप भी कर देते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग क्लू क्या है? आवाज आ रही है, खाने की आवाज आ रही है ना, डब्बे में खाना रखा उसकी आवाज आ रही है. वीक क्लू क्या है? स्मॉल मूवमेंट. Still, chimps prefer the reliable clue. Again, this proves logical thinking. अब एक मेमोरी चैलेंज भी उनके साथ में किया गया. जो चिम्प्स है उनके साथ में एक मेमोरी चैलेंज किया गया. क्या किया गया? 3 कंटेनर्स रख दिए गए उनके सामने. एक में स्ट्रॉन्ग क्लू था, है ना, कि इसके अंदर
खाना है, सामने से नजर आ रहा है, पता चल रहा है। दूसरे में वीक क्लू था कि खाना है पर पता कैसे चलेगा कि खाना है, उसमें पता नहीं लग रहा था। तीसरे में कुछ है ही नहीं क्लू। सो व्हेन चिम्प्स picked the strong clue container, scientists removed it. Now chimps had to choose between the weak clue and with no information box. तो रिजल्ट, उन्होंने वीक क्लू को चूज किया। मतलब कि वो अपने आप में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को इवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन सॉल्व करते हैं पजल्स को, वैसे ही कि हाँ, अगर हमें एक क्वेश्चन है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सन राइजेस इन विच डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये तो इजी सा हो गया, राइट। अगर आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, राइट, कि थोड़ा सा टेक्निकल कि अर्थ कितने लेवल पे टिल्टेड है, कितने एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है, अब ये सबको नहीं पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका वीक क्लू। अब एक और क्वेश्चन हो गया जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, राइट। तो धीरे धीरे वैसे ही चिम्स भी किस कंटेनर में खाना है, उसका स्ट्रॉन्ग क्लू मिल रहा है, यानी कि आवाज आ रही है, खाने की अखरोट रखे हुए हैं, नट्स रखे हुए हैं, उसकी आवाज आ रही है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये खाना है। तो वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि जिसमें से स्ट्रॉन्ग क्लू पता चल रहा है उसको पिक कर रहे हैं, तो ऐसे रैंडमली नहीं पिक कर रहे कोई भी कंटेनर। ओके, सो that meant that they kept multiple possibilities in mind. Okay, and chimps heard two sounds, either the same sound repeated or a new sound second time. Result is that chimps changed their choice only when the second clue added new information. So this shows they can compare, they can detect repetition, they can recognize genuinely new evidence. So ये बहुत human like behavior उन्होंने show किया। ओके, अब एक डिफीटर क्लू भी टेस्ट भी किया गया इनके सामने। अब आपको सोच रहे हो कि मैम ये किस तरह के टेस्ट किए गए, आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि ये टेस्ट किए गए ताकि चिंपैंजीज का पता चल सके कि वो कितने ह्यूमन लाइक तरीके से वो सोच रहे हैं। ओके, तो एक डिफीटर क्लू जो फाइनल क्लू था, उसमें क्या किया गया कि एक बॉक्स लिया गया, उसमें रैटल की आवाज आई, ठीक है, यू हेयर अ रैटल इन अ बॉक्स एंड यू थिंक इट्स फूड, बट देन साइंटिस्ट शो यू पेबल, so that is the real source of the sound. Up now, chimps changed their belief, but they did not change it if the defeater was unrelated. So this shows that they have the ability to understand cause and effect. They have the ability to revise beliefs logically. So what does this all mean? ये सारे टेस्ट को अगर हम पूरा मिला दे तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? We are seeing that chimpanzees, they weigh reliability of information. वो logically सोचते हैं, वो न्यू एविडेंस उनके सामने आते हैं तो उसको रिकग्नाइज करते हैं। ऐसे नहीं कि ये क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग कहते हैं ना कि एनिमल्स को पता नहीं चलता, नो, दे अपडेट देयर बिलीव्स एंड प्रूवन रॉन्ग। सो दिस इज इनक्रेडिबली क्लोज टू ह्यूमन रैशनल थिंकिंग, एंड साइंटिस्ट से दिस रेजेस बिग क्वेश्चन दैट डिड आर एबिलिटी टू थिंक rationally, has it evolved from common ancestors we share with chimpanzees? Okay, so is another question that it raises, that is rationality not a human monopoly after all? कि हम ऐसा तो नहीं है कि जो हम रैशनैलिटी वो सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हाँ ये तो सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, और क्या पता कई सारे ऐसे एनिमल्स हो जिनके पास ये हिडन एबिलिटीज हो। तो ये जो स्टडी है स्टूडेंट्स, इन्होंने एक एनिमल इंटेलिजेंस के लिए एक नया डोर खोला है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल भी वाइल्ड लाइफ में देखने को मिले, जैसे इमेजिन अ चिंप सीज अ रेड फ्रूट ऑन द ग्राउंड एंड थिंक्स द ट्री अबव हैज अ राइप फ्रूट, so when it goes closer it realizes it's just red leaves. So a rational chimp will update its belief and stop expecting fruit from that tree. And the new research suggests that chimps actually do this kind of reasoning. ऐसा नहीं है कि भाई सामने लाल लाल दिख रहा है तो चलो जाके मैं खाना शुरू कर दूं, नो, वो देखते हैं कि अच्छा हाँ इस ट्री के नीचे रेड कुछ गिरा हुआ है, तो ये फ्रूट नहीं है, यानी कि इस ट्री से हमें फ्रूट्स नहीं मिल सकते। ऑल राइट, सो दिस इज द काइंड ऑफ रीजनिंग दे एक्चुअली डू, एंड that was
ऑल अबाउट द चिंपैंजीज कि चिंपैंजीज कैसे अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं एंड ये सारे टेस्ट इवेल्युएट किए गए। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड न्यूज़ आर्टिकल है इट इज़ रिगार्डिंग लक्ष्य सेन। ओके, तो लक्ष्य सेन एक इंडिया के बहुत ब्राइटेस्ट बैडमिंटन स्टार हैं। तो ही हैज़ वन बिग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल्स। बट द लास्ट फ्यू मंथ्स वर टफ। ओके, सो पेरिस ओलंपिक्स में भी इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया और ये एथलीट्स के सब साथ चलता रहता है, हाईज एंड लोज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। बट लक्ष्य डिडंट गिव अप। द ऑस्ट्रेलियन ओपन came at a time when he needed a breakthrough and उन्होंने पूरे वीक में काफ़ी अच्छे से खेला। रिपोर्टर्स ने बताया कि उनका जो परफॉर्मेंस है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोल्ड शार्प क्लीन एग्जीक्यूशन। सो दिस शोज जस्ट नॉट जस्ट स्किल बट मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। और फाइनल मैच में स्टूडेंट्स वो जापान के तनाका के साथ में खेल रहे थे उनके अगेंस्ट में एंड तनाका इज नोन फॉर स्पीड बट लक्ष्य स्टेड काम फोकस्ड, है ना, काफी काम रहे, फोकस्ड रहे, स्ट्रैटेजिक रहे। ही डिडंट ट्राई टू ओवर पार हिज ओपोनेंट, ही आउट थॉट हिम। सो फाइनली लक्ष्य ने ये टाइटल जीत लिया एट द एज 24 आफ्टर रफ पैच एंड ही अचीव्ड a moment of resurgence. Now, why is this win special? Because this victory shows that comebacks are possible. In hard phases, it don't last forever. ठीक है, तो कभी भी अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर फेस करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। एंड champions, my dear students, they are forged in difficult times. Okay, everyone has failures, what matters is how you return. डिसिप्लिन हमेशा, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप जीत सकते हो। ठीक है, मोटिवेशन कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो 12th ग्रेड में है 11th ग्रेड में है, राइट, तो अगर आप डिसिप्लिन हो अपने स्टडीज को लेके, अपने टॉपिक्स को लेके, अपने सब्जेक्ट्स को लेके, देन ऑफ कोर्स यू गोना सेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कभी एक दिन आएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, तो कभी आ सकता है कभी नहीं जा सकता है। ओके, और मेंटल फोकस मैटर्स मोर देन स्पीड। कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो कि वो तो ऐसा है वो ऐसा है, फोकस ऑन योर जर्नी। ओके, एंड sometimes there will be failures, but always remember that your hard work will pay off even if it doesn't happen immediately. So these lessons, they apply to exams, they apply to sports, even hobbies and everyday life. तो हम ये चीज हम सीख सकते हैं, right? So students, that will be all for today. And before we close, uh, think about one question, that when you fail, do you also bounce back like Lakshya Sen? Okay, so this is the question that we need to answer. No need to tell me on the comments below, but just think about it. All right. So, students, thank you for listening and see you in the next episode. Bye bye.